taken right now only. Today we are going to deal with the fifth chapter, which is one of the essentials for a valid contract called free consent. First of all, we will try to cover its main topic. What exactly is the concept of consent and what is free consent? So we will deal with first consent and then we will try to understand what is free consent. So let's have its introduction about the topic called free consent. Friends, as we all know, one of the essentials for a valid contract is consent. Also, consent is must. Like consideration is must, lawful consideration is must. In the same way, consent is must, and the consent must be free. Whatever the parties they are entering into a contract, their consent should be given freely. So if the consent is not free, if the consent is not given freely by the parties entering into the contract shall be treated as either it is considered as void contract or it may be considered as voidable contract. So if the consent is not free, it may be a void or voidable contract depending upon the factor which affects the consent. So what are the types of factors is what we are going to discuss later on. So depending on that factor, either the contract is void contract, if the consent is not free, then the contract may be void depending on the factor, or it may be voidable depending on the factor. So in simple words, an agreement is valid. An agreement is valid only when it is the result of free consent of the parties to it. As we all know, there are 11 essentials for a valid contract. That all essentials are must for entering into a valid contract. From that, as per section 10, one of the essential is free consent and it should be present. It should be, the consent must be given freely by the parties to each other. It should not be given under force, under fear, under threat, under any influence which is unfair. It should not be given as a fraud. So there should be no misrepresentation. There should be no mistake while giving consent. It's all the factors that affect free consent. Let's have now the definition and understanding of the consent. What exactly is consent? Let us try to understand. As per section 13, consent is defined. Let's see its definition. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. If it is not so, it becomes nonsense. So two or more persons are said to be concerned when they agree upon the same thing in the same sense. What exactly it means? It means that the consent of the parties means that they understand the same thing in the same sense. So it's all about depends upon the understanding of the parties. There should be no misunderstanding between the parties. Related with what? Related with the subject matter of the contract. दोनों पक्षकारों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. किस विषय में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? जिस विषय के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी विषय के ऊपर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ माइंड होना चाहिए. यूनिटी ऑफ माइंड, दोनों की थिंकिंग सेम होनी चाहिए और सेम चीज के ऊपर होनी चाहिए. दोनों की थिंकिंग अलग नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. In other words, there must be no misunderstanding between the parties about the subject matter of the contract. Thus, consent involves what? Sir, either you can say unity of mind is needed or you can say identity of mind in respect of the subject matter of the contract is very, very important. जिस विषय के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस विषय के ऊपर दोनों की माइंड्स मिलने चाहिए, दोनों की थिंकिंग मिलनी चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए. अगर अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है, देयर इज नो कंसेंट. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल इन डिटेल एग्जाम्पल रखा है इसी के लिए. देव हैज 2 मर्सिडीज कार्स. हमारे पास तो एक भी नहीं है, लेकिन देव के पास 2 मर्सिडीज कार है. अच्छी बात है.
रईस है, वन इज वाइट एंड अदर इज रेड, कलर भी मेंशन्ड किए हुए हैं। आनंद हु नोज ऑफ ओनली देव्स वाइट कार, आनंद हु नोज ऑफ ओनली देव्स वाइट कार ऑफर्स टू बाय देव्स कार फॉर ₹25 lakhs। अब आनंद और देव, देव आनंद बन गया, हमारी फिल्म रेडी हो रही है, देव के पास 2 कार है ये पता चल गया। आनंद क्या करता है, आनंद देव को ऑफर कर रहा है, लेकिन आनंद को क्या मालूम है कि आनंद को ये मालूम है कि देव के पास व्हाइट कार है, और वो ऑफर करता है देव को 25 लाख में खरीदने के लिए, देव को नहीं, देव की कार को। देव एक्सेप्ट करता है इस ऑफर को, देव एक्सेप्ट द ऑफर थिंकिंग इट टू बी एन ऑफर फॉर हिज रेड मर्सिडीज कार। देखिए क्या हो रहा है, एक के माइंड में कैसी कार चल रही है, व्हाइट कार माइंड में चल रही है, और दूसरे के माइंड में क्या चल रही है सर, रेड मर्सिडीज कार की बात चल रही है सर। किसकी बात चल रही है सर, रेड मर्सिडीज कार की बात चल रही है सर। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। So Dev accepts the offer thinking it to be an offer for his red Mercedes car। यानी दोनों के जो सब्जेक्ट मैटर है, दोनों के जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं है। एक के माइंड में क्या चल रहा है सर, व्हाइट मर्सिडीज कार चल रहा है, दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है सर, रेड मर्सिडीज कार चल रही है। सो बोथ आर थिंकिंग डिफरेंट, देयर इज नो यूनिटी ऑफ माइंड बिटवीन द पार्टीज। यानी दोनों क्या कर रहे हैं सर, देयर इज अ बिग मिस्टेक रिलेटेड विथ व्हाट, रिलेटेड विथ सब्जेक्ट मैटर्स। दोनों की सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है, एक सोच रहा है बड़ी बहन के बारे में और दूसरा सोच रहा है छोटी बहन के बारे में, वैसी बात हो गई। एक सोच रहा है वराछा वाला बंगला, दूसरा सोच रहा है कतारगाम वाला बंगला। एक कुछ और बेचना चाहता है, दूसरा कुछ और खरीदना चाहता है। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो यूनिटी ऑफ माइंड, देयर इज अ बिग मिस्टेक, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। अगर आप दो पार्टीज को लेते, दोनों पार्टीज की थिंकिंग अगर अलग है, तो वहां पे कभी भी कंसेंट वैलिड नहीं होगा। कंसेंट वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा सर। सब्जेक्ट मैटर ही दोनों का डिफरेंट है, दोनों मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको हमें टेक्निकली क्या करेंगे, कहेंगे सर बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज की मिस्टेक है। एक व्हाइट कलर की कार समझ रहा है माइंड में, और दूसरा माइंड में समझ रहा है कि उसे रेड कार खरीदनी है, तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। जब दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग होगा तो क्या होगा सर, बोथ द पार्टीज आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर। दोनों का विषय वस्तु अलग अलग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है सर। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा ही होता है, झगड़ा होता है, एक कहता है नॉर्थ, दूसरा कहता है साउथ, दोनों को होता है डाउट, हस्बैंड वाइफ से कह देता है आउट, ऐसी सिचुएशन। सो देयर इज नो कंसेंट, जहां कंसेंट नहीं होगा अल्टीमेटली क्या होगा सर, देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इट इज बेस्ड ऑन बायलेटरल मिस्टेक, मिस्टेक के ऊपर उदाहरण है, और यहाँ दोनों पक्षकार ने बहुत ही बड़ी भूल की है, सब्जेक्ट मैटर दोनों का डिफरेंट है, तो वहां कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक व्हाइट कार खरीदने की बात कर रहा है, दूसरा रेड कार बेचने की बात कर रहा है, और दोनों को मालूम ही नहीं है, दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। There is a miscommunication, misunderstanding between the parties. As there is no consent, there can be no valid contract. Such contracts are considered as what type of contracts? हमने पढ़ा आगे, या तो void होगा या तो voidable होगा। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वैलिड तो है ही नहीं, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, void कॉन्ट्रैक्ट होगा सर। अब हम चलते हैं फ्री कंसेंट के बाद, छोटे के बाद अब बड़े भैया के पास चलते हैं। कंसेंट के बाद अब फ्री कंसेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कंसेंट समझ लिया सेक्शन 13 के हिसाब से, अब सेक्शन 14 के हिसाब से फ्री कंसेंट समझने की कोशिश करेंगे। दोनों का सेक्शन अलग अलग है। पार्टीज कंसेंटिंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस इतना ही सफिशिएंट नहीं है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए एक ही विषय वस्तु पर, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है। कंसेंट जो दी जा रही है सर वो फ्रीली देनी चाहिए, कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट मस्ट बी फ्री को ज्यादा समझाने के लिए आगे लिखा गया है, इट हैज बीन गिवन बाय द फ्री विल, फ्री डिजायर, मुक्त इच्छा, फ्री विल ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्विंग नो प्रेशर
और यूज ऑफ फोर्स, कोई दबाव नहीं होना चाहिए कंसेंट देते वक्त, कोई फिजिकल फोर्स का उपयोग आपके ऊपर नहीं किया हुआ होना चाहिए, तब आप जो कंसेंट दे रहे हो फ्री है, ऐसा माना जाएगा। द कंसेंट मस्ट बी गिवन एंड द कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली, means there should be no pressure on the parties while giving consent, or there should be no use of force made by the parties while he is giving consent। अभी हमें कैसे पता चलेगा जो कंसेंट दिया गया है वो फ्री है या नहीं है? જે સંમતિ આપવામાં આવી છે તે મુક્ત સંમતિ છે કે નથી, તે હવે સમજવાનો, ડિટેલમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को समझाने की कोशिश की गई है, उसकी डिटेल डेफिनेशन दी गई है। अब समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज फ्री कंसेंट एज पर सेक्शन 14। સંમતિ મુક્ત ક્યારે ગણાશે એ જોઈએ હવે। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, मैंने नॉट के ऊपर भी, बहुत बड़ी नोट है वो, नॉट के ऊपर भी अंडरलाइन किया है, नॉट તમે ગાયબ કરી દેશો ને આખી વ્યાખ્યા ઉલટી થઈ જશે। द डेफिनेशन विल बी टोटली ऑपोजिट व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन, कॉन्ट्ररी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर कॉन्ट्ररी हो गया तो मार्क्स कॉन्ट्ररी हो जाएंगे। हम सोचते हैं हम सब सही लिख के आए, लेकिन चेक करने वाले को पता होता है आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है। तो एक नॉट भी भूल जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, पूरी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। तो कंसेंट तब फ्री माना जाएगा अगर, अब जो 5 आतंकवादी आ रहे हैं, मीन्स 5 फैक्टर आ रहे हैं, पांडवास आ रहे हैं, इसमें से एक भी मौजूद नहीं होना चाहिए। These are the 5 factors which affects free consent। 5 પરિબળો છે જે મુક્ત સંમતિને અસર કરે છે, આમાંથી એક પણ આતંકવાદી સામેલ હોવો જોઈએ નહીં। While you are giving consent, the consent is considered free if it is not caused by the following 5 factors, following 5 points। ये 5 में से एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एक भी प्रेजेंट हुआ, the consent is not free। तो कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी जब इसमें से कोई भी एक भी खिलाड़ी मौजूद ना हो कंसेंट देते वक्त, शुड नॉट बी प्रेजेंट, शुड बी एब्सेंट। तो ये 5 खिलाड़ी कौन है सर? पहला है कोर्शियन। दिस आर द 5 फैक्टर्स, व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग, प्लीज पे अटेंशन। दिस आर द 5 फैक्टर्स which affects free consent। फर्स्ट इज कोर्शियन एज पर सेक्शन 15, सेक्शन याद हो तो ही लिखना है दोस्तों। नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 फ्रॉड, सेक्शन 17 मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 एंड मिस्टेक। मिस्टेक वापिस 3 प्रकार की होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 20, 21, 22, यहाँ 3 सेक्शन लागू होते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजेंट हुआ तो वहां कंसेंट फ्रीली नहीं दी गई है, शायद प्रेशर हो पार्टीज के ऊपर, दबाव हो, फिजिकल फोर्स का उपयोग किया गया हो, फ्रॉड किया गया हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया गया हो, फॉल्स स्टेटमेंट बोल के कंसेंट ली गई हो, मिस्टेक हो गई हो, जैसे अभी हमने मिस्टेक का एग्जांपल देखा था, बायलेटरल मिस्टेक हो सकती है, यूनिलेटरल मिस्टेक हो सकती है, एक पक्ष की भूल हो सकती है, दोनों पक्ष की भूल हो सकती है। जो अभी हमने एग्जांपल देखा था वो बायलेटरल मिस्टेक का था, दोनों पक्ष की भूल थी, दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग था। एक सोच रहा था व्हाइट मर्सिडीज के बारे में, दूसरा सोच रहा था रेड मर्सिडीज के बारे में। एक सोच रहा है बड़ी बहन के बारे में, दूसरा सोच रहा है छोटी बहन के बारे में। एक सोच रहा है वराछा वाला बंगला, दूसरा सोच रहा है कतारगाम वाला बंगला। तो वहां आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अभी हमने चर्चा की सर। तो बीच में डेफिनेशन में खास ध्यान रखना, सब में और रखा है। या तो क्वेश्चन की वजह से कंसेंट फ्रीली नहीं हुआ, या तो अनड्यू के लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हुआ। इसमें से कोई भी एक फैक्टर अफेक्ट करेगा, सब शामिल नहीं होंगे, कोई भी एक अगर अफेक्ट करता है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अब फ्री कंसेंट पे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट, लेट्स हैव द एग्जांपल ऑन फ्री कंसेंट। विवेक at gunpoint makes Anand agree to sell his property। विवेक at gunpoint यानी विवेक के हाथ में गन पॉइंट है, बंदूक लेके खड़ा है, अजय देवगन की तरह गन लेके खड़ा है, देवगन गन लेके खड़ा है विवेक। makes Anand agree to sell his property of worth rupees 60 lakhs to Vivek for just rupees 5 lakhs। भाई 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 केवो भाई भाई जुओ, विवेक के पास एक हथियार है, बंदूक लेके खड़ा है,
नॉर्मली हमने सुना है कानून को अपने हाथ में मत लो, विवेक कानून को अपने हाथ में लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है। आनंद की कनपट्टी के ऊपर गनपट्टी रखी है और आनंद से विवेक कह रहा है कि तेरी जो 60 लाख की प्रॉपर्टी है, 60 lakhs की, वो मुझे सिर्फ 5 लाख में बेच दे। भाइयों भाइयों, सीधा 55 लाख का प्रॉफिट करना चाहता है विवेक। समझ में आ रहा हो तो क्या ये सही है? नो सर। द कंसेंट ऑफ द पर्सन कॉल्ड आनंद इज नॉट टेकन फ्रीली। विवेक क्या कर रहा है सर? यूज ऑफ फोर्स कर रहा है। हियर आनंद कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्शियन। आनंद से जो कंसेंट लिया गया है, गन पॉइंट पे लिया गया है। गन पॉइंट मीन्स इलीगल एक्टिविटी कौन कर रहा है सर? विवेक कर रहा है। क्राइम कौन कर रहा है सर? विवेक कर रहा है। क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है कि अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मुझे नहीं बेची तो जान से मार दूंगा। यूज ऑफ फोर्स, फिजिकल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्शियन, उपयोग किया गया, यानी कंसेंट इज अफेक्टेड बाय कोर्शियन। सेक्शन 15 याद आ रहा हो तो अभी पढ़ा हमने। तो क्या हो जाएगा? कंसेंट फ्री है सर? नो सर, देयरफॉर इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। यहाँ जो कंसेंट ली गई है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी सर। इट इज अफेक्टेड बाय सेक्शन 15, दैट इज कोर्शियन।